WhatsApp. آپ تمام کی خدمت میں یونائٹڈ چرچ ان پاکستان کے سیگمنٹ پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم اس پروگرام میں تلس پورہ میں رسولی کلیسیا کا چرچ ہے نزد بنگسپورہ، وہاں پہ جو پاسٹر انچارج پاسٹر روکن ریاض صاحب ہیں، بھگت بشیر صاحب، بھگت صدیق صاحب، ایلڈر خالد ناتھ، ڈیکن جوید مسیح، تو وہاں پہ انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے جہاں پہ گریس ٹیلی ویژن کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور جس میں خداوند کے زندہ پاک کلام کی خدمت کا کام بھی میں سر انجام دوں گا۔ سو ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ جتنی ہوئی پرستش سچے دل دے نال ہوندی ہے، خدا دا جلال ہمیشہ اٹھے۔ آمین۔ اسی طرح ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، خدا پاک کی پاک حضوری کو محسوس کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی جناب پاسٹر عرفان نذیر صاحب ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اور دعا میں رہنمائی کریں مزید پرستش کے مسئلے کے لیے، تاکہ خدا کا روح، پاک کا روح اس جگہ پر جنبش کرے، اور ہمارا یہاں پر پرستش کرنا خدا کی حضوری میں منظور اور مقبول یسوع کے نام میں وہ سامنے آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے۔ ہاللویہ۔ خدائے قدوس، ابدیت کے باپ، صلح سلامتی کے شہزادے، پاک رب، ہم تیری شکر گزاری اور تیری بڑائی کرتے ہیں۔ تو ہی سجدوں کے لائق ہے، حشمت کے لائق ہے، ستائش کے لائق ہے، زبر کے ہی بڑا ستائش کے لائق ہے۔ تو خدا پاک خدا، ہم تیری حضوری کے اندر ہیں، تو آ خدا پاک خدا ہمیں یہ فضل عطا کر کہ خدا ہمیں روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکے، کیونکہ جب خدا پاک خدا تیرا تخت لگ جاتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے ڈھیروں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خدا جتنے سر تیرے آگے جھکے ہیں، تو خدا ان کو بھی فضل دے تاکہ تیری پرستش روح اور سچائی کے ساتھ کر سکے، کیونکہ تو اب ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکے۔ تو آ خدا پاک خدا جتنے سر تیرے آگے جھک چکے ہیں، تو یہ روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنے والے بنے۔ تو خدا پاک خدا آج کا کلام خدا تیری مرضی کے مطابق ہو، آج کا سارا ایون خدا تیری مرضی کے مطابق ہو۔ خدا پاک خدا ہم گریس ٹی وی کے لیے خدا تیری بلیسنگ، بروتی اور خدا پاک خدا تیرا جلال اس کے اندر چاہتے ہیں پاک خدا، تاکہ یہ گریس ٹی وی خدا پاک خدا دنیا کی انتہا تک خدا پاک خدا ایک خدا پاک خدا سورما کا کام کر سکے، خدا پاک خدا بہت سی روحوں کو جیت کے خدا تیرے کھلا میں شمال کر سکے میرے پاک خدا، اور تاکہ خدا پاک خدا یہ خدا پاک خدا یہ ٹی وی چینل خدا پاک خدا ہماری مسیحت کے لیے خدا آگے بڑھے پاک خدا، سنڈے اسکول بچوں کے لیے آگے بڑھے میرے پاک خدا، اور خدا پاک خدا جو تیرے بندہ نے خدا اس کی وین ہے خدا پاک خدا، جتنا بھی وین ہے اس کو خدا تو آج پورا کرنا، تاکہ خدا تیرا نام عزت و جلال پائے۔ اے بادشاہ اے رحم کرنا، فضل کرنا خدا پاک خدا، سارا عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، سارا آنر یسوع تیرے نام کو جاتا ہے، اور خدا پاک خدا ہم تیرے نام سے بلیس اور برکت پاتے جائیں۔ یسوع کے قادر جلالی ابدی نام سے مانگتے اور خدا باپ سے پا لیتے ہیں۔ ہر طرف، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کہیں پہ، ہر طرف خدا کا جلوہ ہے۔ آمین۔ باہر آج دے مہمان ہوں اپنی کلیسیا چ ویلکم کرنے ہیں، یعنی کہ سارے ٹیچر جنہوں نے سارے نو پتہ ہے کہ تعلیم دا پہلا بوٹا جڑا ہے وہ سر عرب جاوید کھوکھر صاحب نے کھلا ہے، تے انہاں دے فیض صحبت ہی اج بھی اس مقام تے۔ آمین۔ سارے بھائی بچے نے بڑے اچھی پوسٹ تے جا کھلوتے نے، تعلیم نو حاصل کر کے مزید کو پڑھ رہے تے سارا انہاں دی بدولت ہے۔ ہاللویہ۔ آپ سب کی بہترین تعلیم میں، آپ سب کی تعلیم کونس میں جناب صدر عارف جاوید کھوکھر صاحب کو، جن کی فیض صحبت آج ہماری کلیسیا میں ہمارے بچے جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اچھی تعلیم سے آراستہ ہیں، مستقل انہی کی بدولت سے ہیں۔ ہاللویہ۔ میرے بھائیوں سارے مل کے تعلیم لے اپنے اپنا لہرا کے ہاللویہ۔ سارے سے جلال یسوع کے نام پر جاتا ہے۔ Yes,
صاحب نے خدمت کو بھی اجازت دیا کہ خدا زندہ کلام جانب اس زندہ کی الہی کلام جانب جد نازل ہونا انے دیکھ دے ہاللویا جد نازل ہون دے نال پہلے سوندے نے آمین جد نازل ہون نال ایتھوں تک کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں آمین ساری جماعت اپنے ہاتھوں میں آسمان میں کھولیے تیرا ہی کلام یسوع میرے ڈال ہے سارے مل کے گئے تیرا ہی کلام یسوع میرے ڈال چلو سنگ تیرے سدا میری چلو سنگ تیرے مل کے چلو سنگ تیرے سدا میری فریاد ہے میری فریاد ہے پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں دریا میں ہم ڈوب جائیں کلام کو جس کو نازل فرما کے تو شفاؤں کی ندیاں بہا دے پرش سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن تو خود لا تبدیل ہے آسمان اور زمین تو لگ سکتے ہیں لیکن تیرے منہ کا کلام تا حیات دائیں اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے تیرا ہی کلام یسوع میرے ڈال میں تیرا ہی کلام یسوع چلو سنگ تیرے یہی میری فریاد
अज जेड़ा जिंदा कलाम साढ़े तक बयान किया जाए वो साड़ी जिंदगी फलदार हालेलुया। सभी मिलकर बहुत सी ज़ुबानें बुलंद आवाज से लिखा है कि गला फाड़ रेख ना कर, अपना हाल यीशु मसीह के सामने खोल, उसे कहे कि खुदा आज जब मैं तेरा जिंदा कलाम सुनूं, आज जब मैं तेरा जिंदा कलाम सुनूं तो मेरी जिंदगी में फल की तरह हूँ। ऐ मेरे बाप खुदा, क्योंकि तू पाक है, तू अजीम है, तू जो खालिक हयात है, तू जो हल मुश्किलात है, तू जो मुश्किलों में मुश्किल कशाई करता है, तू जो हाजतों में हाजत रवाई करता है, तू जो बेवजूद को वजूद देता है, तू जो हर तरह की बेतरतीबियों में मुकम्मल तरतीब और रहनुमाई अदा करता है, तू जो अपने जलाल में जलवागर होता है, तू अंधों को आंखें, बीमारों को शिफा, गरीबों को तख्त व ताज अदा कर देता है। इसी तरह हम सब अपने सिर को झुकाए लेकिन कलाम की गई कि बस लिख से हमके सामने को बाप और बेटे और कुदस के नाम से खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज शाम के लिए, तेरी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शों के लिए कि तूने हम सबको सलामत और तंदुरुस्ती की हालत में रखा। आज तेरी पाक हज़ूरी में जितनी जाने से रुजू है सबको नाम नाम बरकत देना। बस उसी तौर पर तेरे बंदा के लिए, तेरे ममसू के लिए दुआ करता हूँ खुदा, अपना आसमान खोल खुदावंद, अपने बेटे को बड़ी बरकत देना। जितना भी तेरा जिंदा कलाम बयान करे तेरे लोगों के लिए रोए नजात बस खुदावंद। ग्रेस टीवी के वसीला से जितने लोग ऑनलाइन हो खुदावंद, इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाए खुदावंद। आज खुदावंद हमारा झुकना मांगना तुझे आसमान पर पसंद आए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ। अंधेरी जगह में हमेशा रोशनी का काम करता है। हालेलुया। तो आज हम खुदा के जिंदा कलाम के जाने बढ़ेंगे, तो आप सबकी भरपूर तालियों में, आप सबकी ताली की मौज में, आप सबकी भरपूर ताली की मौज में खुदावन ने जो खिदमत दी है मैं बताना चाहता हूँ ग्रेस टीवी के हवाला से। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया है जिसमें हमने एक सेगमेंट प्रेयर टाइम का रखा है, जिसमें खुदावन के खादमों को, फरस्तारों को जो है वो स्टूडियो में बुलाएंगे, जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे, हीलिंग का काम जो है वो जारी व सारी होगा। फिर एक सेगमेंट जो है वो जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के ताल्लुक से जो है वो मैंने शुरू किया है, जिसमें जो भी जुल्म ज़्यादती माइनॉरिटी के हवाला से है उसको कवरेज की जाएगी, जैसा आरजू के हवाला से और बेटियों के हवाला से मसाइल चल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात संडे स्कूल के हवाला से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बचपन से बच्चों को तरबियत देनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक सच्चे जोशीले सिपाही की हैसियत से जो है वो काम करें। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ जो जॉबलेस बेटे बेटियाँ जो कामों पे जाती हैं, तो उसके लिए भी दोस्तों के साथ मुशावरत जारी है। और खुदावन से ये मांग रहा हूँ कि खुदावन खिदमत करने वाली टीम जो है वो मुहैया करे, ऐसे लोग मुहैया करे जो खिदमत करें, ताकि हम सब मिलकर मसीही कौम की अपलिफ्टिंग के लिए जो है वो काम करें। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे मोतबर जो बात है वो खुदावन के जिंदा पाक कलाम की है, उसको हम अपनी नसीहत और हदायत के लिए जो है वो सुनेंगे। तो मेरे साथ निकाले इमसाल की किताब, उसका 13 बाब, उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, सदाकत रास्त रो की हिफाजत करती है लेकिन शरारत शरीर को गिरा देती है। नामी आयत में लिखा है, सादत का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझाया जाएगा। और इस तरह जब आप मिसाल 14 को देखते हैं, रास्त रो खुदावन से डरता है पर कज रो उसकी हकारत करता है। बहुत सारी इस तरह मिसाल 12 बाब 21 आयत में लिखा है, सादक पर कोई आफत नहीं आएगी लेकिन शरीर बला में मुब्तला होंगे। और मिसाल 14:32 में लिखा हुआ है, शरीर अपनी शरारत में पस्त किया जाता है लेकिन सादक मरने पर भी
उम्मीदवार है। मैं आज का जो मेरा मौजू है वो सादक और शरीर के बारे में है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जो हैं वो हालत जंग में हैं। इस दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ी जंग जो है वो अबलीस की है और खुदा की है। अबलीस के लोगों की और खुदा के लोगों की जंग। और हम सब जो है वो इस फाइट में जो है वो चल रहे हैं। और इस तरह से खुदा उनके खादमीन और जो ऐसे लोग जो अबलीस है जो आसमान से फौज गिराई जा रही है, वो नहीं चाहता कि खुदा उनका काम जो है वो हो। वो उसमें रुकावटें डालता है, परेशानियां डालता है। और ऐसे लोग जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं, सच्चाई में बढ़ना चाहते हैं, उनमें रुकावटें जो है वो पैदा करता है। और इस तरह से बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरा देता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो ये सच्चाई बयान करती है कि जो सादक आदमी है, जो सच्चाई पर कायम रहता है, जो खुदा के कलाम में आगे बढ़ता है, जिसके अंदर एक खिदमत का जज्बा है, खुदावन कभी भी उसे जो है वो नहीं गिरने देता। अगर हालात वाक़यात उसके मुखालिफ भी हो जाए, फिर भी खुदा जो है वो उसे उठा खड़ा करता है। लेकिन ऐसे लोग जो अबलीस के साथ हैं, जो अबलीस के कामों में शरीक हैं, जो अबलीस का साथ देते हैं और इस तरह से खुदा के कामों में रुकावटें डालते हैं, वो अपनी शरारत में ही पस्त जो है वो किए जाते हैं। और मैं बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में अगर दानियल की किताब पढ़ें, चूंकि मुख्तसर सा टाइम मुझे दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा कीमती टाइम है, तो मैं इसका हवाला से बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में अगर आप दानियल की किताब पढ़ें, उसका पहला बाब पढ़ें, उसका तीसरा बाब पढ़ें, उसका छठा बाब पढ़ें, तो उसमें जो है वो 4 लोगों का जो है वो बयान मिलता है। 4 लोग जो सच्चाई पर जो है वो चलते हैं। उसमें सदरक है, मिशक है, अब्दुन्नजू है और दानियल है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बड़े खादम नहीं थे, वो दुनियादारी के मामलात में थे। और अगर उसको दूसरे दुनियावी मायनों में देखा जाए तो वो सियासी तौर पे जो है वो काम करते थे। और ये वाकया कुछ इस तरह से है कि जब शाह यहूदा यहूजकीम बादशाह जो था, उसके तीसरे साल में क्या हुआ कि शाह बाबुल जो था उसने यरूशलेम पर जो है वो चढ़ाई की। और क्या किया उसने जो है वो यहाँ पे इनको शिकस्त दी, बादशाह को शिकस्त दी और हैकल से बहुत सारे बर्तनों को जो है वो अपने साथ ले गया, क्योंकि खुदा ने ऐसा किया। इस वजह से कि वो लोग बनी इस्राएल के लोग जब खुदा उनके साथ सच्चाई के साथ चलते तो खुदा उनकी मदद करता, उनकी बहाली करता। जिस तरह के जब वो मिस्र मुल्क मिस्र से निकाले गए, तो जब तक वो खुदा के साथ साथ चलते, खुदा उनकी रहनुमाई करता, उनकी मदद करता, उन्हें मन सलवा आसमान से जो है वो देता, उनको खुराक देता। लेकिन जैसे ही वो बुड़बड़ाते, भटक जाते, शरारत की राहों पर चल पड़ते, क्या होता? खुदा जो है वो उनसे हट जाता, पीछे हट जाता। और वो इसी तरह शिकस्त में, परेशानियों में, मुसीबतों में, दुखों में जो है वो चले जाते। बहन इसी तरह अगर हम खुदा के साथ साथ चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, तो खुदा हमारी मदद करेगा। वो घराना जो सच्चाई पे चलता है, वो कलीसियाँ, वो मुल्क, वो कौमें जो सच्चाई पे चलती हैं, खुदा उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है। वक्ती तौर पर अगर वो गिराई भी जाती हैं तो खुदा जो है वो उन्हें बहाल करता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ से बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने कब्जा में शाह बाबर ले गया, तो वहाँ पे उसने क्या किया? उसने ये हुक्म जारी किया कि जितने भी लोग जो हैं वो यहूदियों से लाए गए हैं, उनकी परवरिश की जाए, उनको शाही खाना जो है वो दिया जाए, 3 साल तक उनकी जो है वो उनको खाना दिया जाए, उनकी तरबियत की जाए। 3 साल के बाद वो बादशाह के हजूर जो है वो हाजिर हों। तो यहाँ पे ये 4 लोग भी थे, दानियल, सदरक, मिशक, अब्दुन्नजू। अब क्या हुआ? चूंकि खुदा का कलाम जो है वो ये इजाजत नहीं देता था कि जो मैं शाही खजाने से आती थी उसको जो है वो पिया जाए। वो खुराक जो है वो बाइबल के जो है तौरात के मुनाफिक शाही हुक्म था। लेकिन
चूंकि खुदा के साथ साथ चलते थे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहूदी मजहब में जब बच्चा छोटा ही होता है तो उसको जो है वो हैकल में भेजा जाता है। जब वो 11, 12, 13 साल की उम्र का होता है तो वो हाफिज बन जाता है। वो तरेत को, तमाम आइन अहकामात को जो है वो बखूबी जानता है और उसकी ये तरबियत जो है वो ता जिंदगी तक जो है वो रहती है। जबकि हमारे जो मसीही मजहब में मैं ये इस बात पे जोर देता हूँ, जैसे आप जो है वो वाक़ियात सुन रहे हैं 12 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का, 13, ये सारी तरबियत का जो है वो असर है। अगर आप बच्चों को जो है वो, जैसे हमारे संडे स्कूल हैं, एक जो है वो हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि बच्चों को मजबूत तालीम जो है वो दी जाए ताकि बड़े होने तक जो है वो ये सारी जो बातें हैं उसके जहन में, जिंदगी में, दिल में नक्श हो जाए। और ये तरबियत का असर था कि इन चारों लोगों ने खुदा के आइन अहकामात के मुनाफिक काम नहीं किया है। उसको कहा कि हमें ये शाही खाने की बजाय साग पात जो है वो दिया जाए। वो ये कह रहा है कि अगर मैं साग पात दूंगा तो क्या होगा, बादशाह के हुजूर जब तुम लोग पेश किए जाओगे तो मेरी पेशी हो जाएगी, मैं नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन खुदा उनके साथ साथ था। खुदा ने उस दरोगे के दिल में भी जो है वो बात डाली और उसने कहा, उनका मुआहदा ये तय पाया कि 10 रोज तक साग पात दे। अगर हमारी परवरिश, हमारी खूबसूरती जो है वो दूसरे लोगों तक हुई तो हमें कायम रखा, वरना जो है वो छोड़ देना। 10 रोज तक जब उनको साग पात दिया गया तो उन तमाम लोगों से जो है वो ज्यादा खूबसूरत, ताकतमंद और सेहतमंद जो है वो नजर आए, चूंकि वो खुदा के साथ साथ चलते थे, सच्चाई पर चलते थे और खुदा ने उनकी मदद, रहनुमाई की और इस तरह से उनकी तरबियत जो है वो साग पात, हिकमत, दनाई जो है वो खुदा उनको मुहैया करता रहा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों लोग सदरक, मिसक, अब्दुल-नजूर, जब आप तीसरे बाब को पढ़ें तो वहाँ पे ये पता चलता है कि क्या हुआ। इनको बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो फाइज जो है वो किया गया। ये सूबे होकर जो है वो बहुत आगे जो है वो बढ़ गए हैं, बादशाह के जो है वो करीब हैं, क्योंकि वो सच्चाई पे चलते थे तो खुदा उनकी मदद करता था, खुदा उनको डायरेक्शन देता था और खुदा जो है वो बादशाह के दिल में भी, जहन में भी उनकी इज्जत जो है वो बढ़ाता था। अब क्या हुआ, शाह बाबर ने एक सोने की मूर्ति बनाई जो 7 हाथ जो है वो उसकी लंबाई थी, 6 हाथ उसकी चौड़ाई थी। और ये हुक्म जारी किया गया कि जब भी मनाद ने ये कहा, तमाम मशीरों को, वजीरों को, सफीरों को जो है वो वहाँ पे बुलाया गया, बाबल में इकट्ठा किया गया, यहाँ पे मूर्ति जो है वो तैनात की गई और कहा गया कि जब ये साजों की आवाजें आए तो तमाम लोग जो है वो इस मूर्ति के आगे झुक जाएं। लेकिन ये मर्दे खुदा पर यकीन रखते थे, सच्चाई पर चलते थे। उनकी रगों में, उनके जहनों में उन्होंने किसी ओहदे की परवाह नहीं की कि बादशाह ने तो हमें बड़ा नवाजा हुआ है। आज के दौर में अगर हुकूमत वक्त हमें कोई सहूलत देती है, ओहदे पे फायद करती है, तो हम क्या होगा, हम अपने ईमान से भी जो है वो फिर जाएंगे। जिस तरह हाकिम वक्त कह रहा है उसके मुताबिक करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये मर्द खुदा जो सच्चाई पर चलते थे, खुदा की आइन अहकामात पर चलते थे, इन्होंने बादशाह की परवाह नहीं की, इन्होंने दौलत की परवाह नहीं की, इन्होंने ओहदों की परवाह नहीं की। इन्होंने खुदा के नाम को, खुदा के आइन अहकामात को जो है वो अवलियत दी और मूर्ति के आगे नहीं झुके। अब क्या हुआ, लोग जो शरारती लोग थे उन्होंने बादशाह के हजूर जो है वो शिकायत की कि ये जो तूने बड़े चहेते पाले हुए हैं, ये तेरा हुक्म ही जो है वो नहीं मान रहे। तो जब बादशाह बड़ा गजबनाक हुआ कि मैंने इन्हें दौलत से, मर्तबे से, इज्जत से नवाजा और ये मेरा कहना जो है वो नहीं मान रहे, बादशाह ने उन्हें हाजिर किया है और कहा कि जब जो है ये बरबद और करना वगैरह बजे तुम लोगों ने सजदा कर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बादशाह इस मामले में हम तेरे ताबे नहीं हैं, हमें खुदा का हुक्म मानना जो है वो जरूर है। तो मैं ये बताना
चाहता हूँ कि जब जितने लोग खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आर्डर किया गया था कि अगर कोई सिजदा नहीं करेगा तो उसे आग की भट्ठी में जो है वो डाला जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे जैसे बंदे होते, कमजोर बंदे होते, वो फिर जाते, वो कहते कि मैं क्यों मुसीबत में जो है वो चला जाऊं, मैं तो आग में जाऊंगा तो मैं तो जल जाऊंगा। लेकिन ये मर्दे खुदा थे, ये सच्चाई पर चलते थे, खुदा की आईना का मार्ग पर चलते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उनको पता था, उनका ये ईमान था कि खुदावंद जो है वो हमारी मदद करेगा। अब बादशाह को गुस्सा आया कि ये मेरे मुंह पर मेरा आइन हुक्म जो है वो नहीं मान रहे। उसने कहा कि आपको 7 गुना और बढ़ा दो। अब क्या, जब आग बढ़ाई गई है तो जो फेंकने वाले हैं वो खुद झुलस कर जो है वो हलाक हो गए। इतनी तेज जो है वो आग जलाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, जब उनको आग में डाला गया तो बादशाह ने देखा कि वहां पे 4 लोग जो है वो आग में फिर रहे हैं। एक की सूरत अलाज़ादे की है। तो जरा अंदाजा कीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग रास्त रवि से खुदा के आईना का मार्ग को मानते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, खुदावंद उन्हें डामाडोल नहीं होने देता। खुदावंद उनकी मदद करता है। आग की भट्टियों में से भी खुदावंद जो है वो उनको बचा देता है। और कभी भी आप अपने जहन में ये तसव्वुर ना करें कि मैं खुदा के साथ साथ चलता हूँ, कोई मुसीबत परेशानी आ जाती है तो कभी भी आप कंप्रोमाइज ना करें। खुदा के मामले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दुनियादारी के मामला चलते रहते हैं, हाल औलाद ये सारा हमारा फर्ज है, लेकिन हर बात में हमें खुदावंद को जो है वो अबलियत देने की जरूरत है। जब आप खुदावंद को अबलियत दें तो खुदावंद आपको अबलियत देगा। आपके सारे मसले बिगड़े काम जो है वो खुदावंद खुद ब खुद जो है वो संवार देगा। और दानियल की मिसाल मैं देना चाहता हूँ। दानियल 6 बाब में आप पढ़े तो वहाँ पे लिखा हुआ बादशाह ने क्या किया, 120 नाज़िर मुकर्रर किए और उसमें 3 वज़ीर मुकर्रर किए। 3 वज़ीरों में दानियल भी था। दानियल बुजुर्ग, दानियल में फादर रूह काम करती थी। वो रोया बादशाह को बताता था, बड़ा हिकमतमंद और खुदा के साथ साथ चलता था। वो अपने घर में 3 दफा खिड़की को खोलता, हैकल की तरफ मुंह करके जो है वो खुदा को सिजदा करता, दुआ करता, प्रेयर करता। और वो इस बात से नहीं डरता और खुदा ने उसे बढ़ोतरी दी, बरकत दी। और यहाँ तक कि बादशाह ये चाहता था, बादशाह की नजर में वो ऐसा मकबूल हुआ कि बादशाह चाहता था कि सारी सल्तनत का उसको जो है वो मुख्तार बना दिया जाए। और जितने नाज़िम थे, मशीर थे, वो जलते थे कि खुदा इसे प्यार करता है, यानी ये बादशाह जो है वो इसे प्यार करता है, इसे जो है वो सल्तनत देना चाहता है। तो उसकी नज़र में उन्होंने बड़ी साजिशें सोची और बड़े मंसूबे बनाए, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका, चूँकि वो खुदा के साथ साथ चलता था, दानिशमंद था, खुदा ने उसे हिकमत दी हुई थी। अब उन्होंने कहा कि ये एक बात में जो है वो फंस सकता है। उन्होंने मंसूबा बनाया। उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह ये हुक्मनामा जारी कर, जैसे फारसियों में, मादियों में जो कानून बादशाह राइज करता है, अगर कोई भी उसके मुनाफी चलता है तो उसे शेरों की मान में डाल दिया जाता है। तो तू भी एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर कि 30 दिन तक कोई भी अपने माबूद को सजदा जो है वो नहीं करेगा, वक्त तुझे जो है वो सजदा करेगा। अब बादशाह जो है वो चूंकि सारे जो वजीर थे, सफीर थे, नाज़िम थे, उन्होंने जिद की और बादशाह को मजबूरन उन्होंने वो हुक्मनामा लिखवा कर मोहर सबत करके जारी कर दिया। अब क्या हुआ, उनको पता था कि ये दानियल जो है ये खुदा के साथ साथ चलता है, ये कंप्रोमाइज नहीं करेगा और इस बात में इसे जो है वो फंसाएंगे। अब क्या हुआ, सारे लोग जो हैं वो इस बात के अबे हैं, हुक्मनामा जो है वो मान रहे हैं।
لیکن یہ خدا کا بندہ، یہ جو مرد خدا جس کی تربیت جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوئی تھی، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حالانکہ اس کو جو ہے وہ ساری سلطنت کا کار مختار جو ہے وہ بنایا گیا، عہدہ دیا گیا، دولت، عزت، شہرت، ساری چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، لیکن خدا کے معاملے میں اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور کیا ہوا؟ اسی دن جا کر وہ اپنے گھر میں گیا اور اس نے کھڑکی کا دریچہ کھولا اور کیا کیا؟ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوا۔ اب وہ پہلے ہی جو ہے اس چکر میں تھے اسے پھانسیں، جب انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ تم نے 30 دن کا حکم نامہ جاری کیا ہے، لیکن یہ جو تو تیرا چہیتا وزیر ہے جس کو تو زیادہ پیار کرتا ہے، یہ اس نے تیرے حکم کو جو ہے وہ نہیں مانا ہے، لا مالا۔ وہ جو ہے وہ غصے میں بادشاہ آیا، میں حق میں وقت ہوں، میں نے اسے ذلت اور شہرت دی ہے، عزت دی ہے، اسے ذلت سے بچایا ہے، اور اس نے میری ہی تابعداری نہیں کی، لیکن مرد خدا کے معاملے میں اس نے کسی قسم کے کسی عہدے کی، دولت کی، شہرت کی پرواہ نہیں کی، اور وہ خدا کے آگے جھکا ہے۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ جو ہے وہ مجبور تھا، بادشاہ نے اعلیٰ تعالیٰ کیا کہ کسی طرح سے، کیونکہ بادشاہ بھی دانیل کو جانتا تھا کہ یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا آدمی ہے، حکمت دانائی سے معمور ہے۔ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شیروں کی مان میں ڈالا جائے، لیکن مجبور ہو کر انہوں نے مجبور کیا کہ تو نے آئین احکامات جاری کیے ہیں مادیوں کی طرح، فارسیوں کی طرح، اگر تو ہی اپنے حکم پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ رعایا تیری بات جو ہے وہ نہیں مانیں گی۔ مجبوراً اس نے حکم دے دیا کہ شیروں کی مانگ میں ڈال دو، لیکن بادشاہ کو یقین تھا کہ دانیل جس خدا کی عبادت کرتا ہے خدا جو ہے وہ بچائے گا، اور دانیل کے چہرے پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ شیروں کی مانگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہوتے ہیں مرد خدا، یہ ہوتے ہیں لوگ جو سچائی پہ جو ہے وہ کاربند ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو خدا کے آئین احکامات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اس کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، بادشاہ بڑا مضطرب ہے، ساری رات اسے نیند نہیں آئی، اسے پتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ جس خدا کی عبادت کرتا ہے وہ اسے بچائے گا۔ اور جب کیا ہوا کہ بادشاہ صبح کو گیا ہے وہاں پہ، تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے دانیل کو آواز دی، اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تیرا خدا تیری حفاظت جو ہے وہ کرے گا۔ اور پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ ان شریر لوگوں کو جنہوں نے شرارت کی تھی ان کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ شریر اپنے ہی شرارت میں جو ہے وہ مر گئے۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ہم دانیل 6 باب کا حوالہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روح زمین پر بستے تھے نامہ لکھا، تمہاری سلامتی افزون ہو۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان اوزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اس کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی ملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اس نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مخالفین کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں۔ اور جس طرح کے ان خدا کے بندوں نے، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑے عالم فاضل پاسٹر لوگ نہیں تھے، یہ عام دنیا داری کے لوگ تھے، لیکن بچپن سے جو ان کی تربیت
सच्चाई की हुई थी, वो अपनी उस सच्चाई को सामने रखते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को जो है वो अवलियत दी है। तो ज़रूरत है, मैं आज आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ बाइबल के हवाले से कि आप तमाम लोग अपने घरानों में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को जो है वो अवलियत दें, और फिर देखिएगा कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में, आपके घराने में, आपके बच्चों में कैसे कैसे बड़े काम करेगा। खुदावंद आप सबको बस जनाब यासुफन साहब वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करें। अपनी इक़्तिबास करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। निहायत मेहरबान स्वर्ग प्यारे आसमानी बाप, दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी अनगिनत रहमतों के लिए, तेरे प्यार, तेरे फजल और तेरे रहम के लिए, जिसमें आसमानी बाप तूने हम सबको वफादार जाना और आज का ये दिन हमारी जिंदगी में अता किया ताकि हम तेरे चरणों में झुके, तुझे सजदा करें और तेरी उतराही मोहब्बत को जो तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से की, उसका इज़हार करें। शुक्रिया अदा करते हैं आसमानी बाप तेरे बंदा के लिए जिसने तेरे कलाम को वाज़ेह और आसान तरीके से हम सब तक पहुंचाया है। यकीनन आसमानी बाप तूने अपना फजल उस पर अया किया और फिर उम्मीद करता हूँ आसमानी बाप तो हम सबको भी बींगा वालिदैन होने के नाते बड़ी अकल और दनाई अता कर, ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। और भी प्यारे आसमानी बाप औलाद होने की सूरत में तो हमें अपने वालिदैन के फर्माबरदार बना, ताकि हम लायक तौर पर तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह में बढ़े, यानी ईमान में, उम्मीद में और मोहब्बत में, और कभी भी संगीन हालात में आसमानी बाप तुझे ना छोड़े, बल्कि हमेशा तेरा साथ अपने साथ साथ रखें और उसका तजुर्बा हासिल करें। अपनी इस कलीसिया के लिए उम्मीद करता हूँ आसमानी बाप तू एक एक खानदान के साथ हो, एक एक की रहनुमाई कर। आसमानी बाप विनती भी करते हैं अपना कभी और नस्लों का हार हमेशा अपने बच्चों पर बढ़ाए रख। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले। बाल बेटे की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत उन तो लेके तमाम मसीह कलीसिया, तमाम अंदर के मुल्क पाकिस्तान पर, खास इस जमात पर हमेशा हमेशा खुदावंदा होती रहे।